اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے. میں نے بتایا کہ اگر حروف مقطعات شروع میں آتے ہیں تو ان میں جتنے لیٹرز ہوتے ہیں اس سورہ کریمہ میں سب سے زیادہ وہی لیٹرز ہوتے ہیں. لہذا قاف شروع ہے. قاف دیکھیں گے آپ کہ سورہ کریمہ میں سب سے زیادہ تعداد الفابیٹس میں قاف کی ہے. اس سے زیادہ کوئی الفابیٹ نہیں ہے, کوئی بھی لیٹر نہیں ہے جتنا قاف ہے. جی, قاف کے بعد والقرآن, دیکھیں قاف آ گیا, قاف والقرآن المجید, تو یہ قاف تو یہ دوسرے والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. جی جی, قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ بل كذبوا بالحق لما جاء. اب دیکھیں قاف سے شروع ہو رہا ہے حروف مقطعہ سے, اور قاف بھرا پڑا ہے اس سورہ کریمہ میں. بہت سارے لیٹرز, 29 لیٹرز ہیں نا, لیکن 29 لیٹرز میں اس سورہ کریمہ میں صرف ایک ہی سب سے زیادہ ہے. کون؟ بہت سارے لیٹرز ہیں لیکن سب سے زیادہ لیٹر کون سا آیا؟ قاف کا لیٹر ہے, قاف کا. کیوں آیا سب سے زیادہ؟ جی. اس کے بعد منیب کسے کہتے ہیں؟ منیب. جی, ایک ہوتا تائب, ایک ہوتا ہے منیب, اور ایک ہوتا ہے اواب. جی, اگر آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے, جی, رجا اب مخالفت اللہ یا اب مخالفات اللہ, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اگر پلٹتا ہے آدمی, کہ بھئی ادھر جا رہا تھا, اللہ کی مخالف سمت میں جا رہا تھا, اور پلٹتا ہے خوفا من اللہ, اللہ کے خوف سے, فہو تائب, وہ تائب ہے, توبہ کرنے والا ہے. وَمَن رَجَعَ مُخَالَفَاتِ اللَّهِ حَيَاءً, اگر حیا سے آدمی پلٹتا تو منیب ہے. وَمَن رَجَعَ مُخَالَفَاتِ اللَّهِ تَعْظِيمًا, اگر اللہ کی عظمت کو یاد کر کے پلٹتا ہے فہو اواب, اواب ہے اللہ. تو منیب, اواب اور تائب میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ پلٹتا ہے گناہ سے اللہ کے ڈر سے تو تائب ہے. اگر حیا سے کیا کر رہا ہوں میں, اللہ کیا کر رہا ہوں میں, حیا آنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے کہا, کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, انسان کو ہم نے پیدا کیا, برابر. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. جی, انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں, جی, ہم ان وسوسوں سے واقف ہیں. جی جی جی, اللہ اکبر. ایک انسان کی حالت آدمی نہیں سمجھ سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم تمام انسانوں کے دل پر گزرنے والے وسوسوں تک سے واقف ہیں. اللہ, علم کا اندازہ لگائیے آپ, علم کا اندازہ لگائیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جی, ارے تو دل کی دھڑکنیں کس انداز کی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. یہ تو ایک معاملہ ہے, پتے گرتے, پتے کتنے گرتے وہ معلوم ہے اس کو, کتنے سوکھے ہیں کتنے گیلے ہیں معلوم ہے. علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اس کے دل میں گزرنے والے خیالات, اس کے دل پر گزرنے والے وسوسے, اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات, ہم ان تمام چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. اللہ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں. اس لیے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی شہرک ہوتی ہے, ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب آدمی گناہ کرنے چلے تو اسے کتنا شرمندہ ہونا چاہیے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب, اللہ کے سامنے یہ حرکت کر رہے ہیں. اللہ, تو حیا سے اگر آدمی, اگر ڈر سے پلٹتا ہے تو تائب, اور اگر حیا سے پلٹتا ہے, ارے اللہ اتنے قریب ہے, اتنے گناہ کرنے جا رہا ہوں میں, اگر حیا سے پلٹتا ہے تو منیب, اور اگر اللہ کی عظمت کو یاد کر کے کتنا عظیم ہے وہ پلٹتا ہے تو اواب ہے. اس لیے آگے صفت اواب آ رہی ہے. جی, اور یہی صفت حضرت سلیمان کی ہے, حضرت داؤد کی ہے, اور حضرت ایوب علیہ السلام کی, اواب. اور یہی نہیں, انسان کو پیدا کیا ایک, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ, انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات وسوسے ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ, جی. اور اس کے علاوہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ,
दाएं बाएं दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, दाहिनी तरफ जो बैठा हुआ है वो नेकियां लिख रहा है, बाईं तरफ जो बैठा हुआ है वो बुराइयां लिख रहा है। अच्छा, यहां फरिश्ते नहीं कहे, मलकान नहीं कहा गया, मुतलक्कियान कहा गया। तलक्की का मतलब होता है टू रिसीव, और मुतलक्कियान का मतलब होता है रिसिपिएंट, रिसीव करने वाले, यानी टू रिसीव एनीथिंग, किसी चीज को रिसीव करना, इसको कहते हैं तलक्की। रिसीव करते हैं, ये रिसीव करते हैं। जैसे आदमी ने कोई बात कही, लिख लेते हैं जी, सुनाई दे रहा है, वो जो कॉल है उसका, उसकी जो बात सुनाई दे रही है उसको लिख रहे हैं, लिख लिए। कर रहा है उसको भी जी रिसीव कर रहे हैं, और बात कर रहा है उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तब भी उसको रिसीव कर रहे हो जी। उस तरफ फोन पर बैठा हुआ है, फोन, उसके फोन की जरूरत नहीं है, सुन लेता है, रिसीव कर लेता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए लफ्ज तलक्की इस्तेमाल किया गया है। कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता तो इन तमाम अहवाल का अहाता नहीं होता था, जिसके लिए रिसीव लफ्ज लाया गया। रिसीव, ये रिसीव करते हैं सब जी, सिर्फ सुनते ही और देखते ही नहीं है, बल्कि रिसीव करते। कोई भी चीज इंसान की तरफ से आए, रिसीव कर लेते हैं उसको। इद यतलक, कितना अजीब गरीब लफ्ज है, रिसिपिएंट्स। इद यतलक, और दो हैं, अनिल यमीन वानी शिमाल कईद, क्या करते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौल, कोई भी बात आदमी मुंह से निकाले फौरन नोट कर लेते हैं जी जी। अल्लाह, आगे फरमाया गया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंता मिनहु तहीद, मौत की सख्ती आ गई। एक होता सकरा, एक होता गमरा जी। मौत के लिए चार अंदाज इख्तियार किए गए, मौत की शिद्दत को चार अल्फाज और चार तराकीब के साथ जी। एक तरकीब तो यह है, वजाअत सकरतुल, सक्र कहते नशे को। आदमी के जहन पर अगर नशा तारी हो जाए तो अक्ल माऊफ हो जाती है, अक्ल काम करना बंद कर देती है। उसको मालूम नहीं कि बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ कि नाले में पड़ा हुआ है। यानी शुक्र जो होता है, नशा, आदमी के अक्ल को माऊफ कर देता है। अल्लाह फरमाता है, दुनिया में बहुत सारे नशे तुमने देखे हैं, शराब का नशा, दौलत का नशा, औरत का नशा, माल का नशा, जायदाद का नशा, बहुत सारे नशे तुम्हारे दिमाग पर सवार हुए, और ये सारे के सारे नशे हैं। लेकिन एक नशा होता है जो आखिरी होता है जी। इसी वजह से सकरतुन, सकरतुन जी, मौत के साथ इस्तेमाल हुआ है। मौत का सकरा सिर्फ एक बार है, यह नशा सिर्फ एक बार तारी होता है, और जब तारी होता है तो आदमी की अक्ल काम करना बंद कर देती है, फिर रूह निकाल ली जाती है उसकी। अल्लाहु अकबर, ये सकरा है। ये जब मौत का सकरा आता है तो जैसे शुक्र में, नशे में आदमी की अक्ल काम करना बंद कर देती है, मौत का सकरा सिर्फ एक बार आता है, मौत का नशा सिर्फ एक बार आता है। दुनिया में आदमी बहुत सारे नशे करता है, फिर दोबारा उसको, फिर दोबारा शराब का नशा करता है, फिर उसी शराब को पीता है, फिर नशा करता है। तो एक चीज का नशा कई कई बार करता है। अल्लाह फरमाता है, एक नशा ऐसा है जो सिर्फ एक बार आदमी को आता है, वजह सकरतुल मौत, मौत का नशा। उस नशे को बता भी नहीं सकता, अक्ल खराब हो जाती है उसकी, बता नहीं सकता, अक्ल काम नहीं करती, वजह सकर। अच्छा, ये तो सकरा है, नशा, जिससे अक्ल खराब हो जाती है। और एक गमरा, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइका, गमरतुन की जमा गमारात, वहां गमरात लाया गया। एक अजीब बात है कि जब फरिश्ते रूह निकालने के लिए आते हैं तो वहां गमरात का लफ्ज इस्तेमाल, फी गमरातिल, या सकरतुल मौत है, वहां फी गमरातिल मौत। गमरात किसे कहते हैं, लुजजुल माइल्लती युगत्ती साहिबहा। देखो, ये पानी है, और गमर का मतलब होता है ढांप लेना, ढांप लेना, युगत्ती साहिबहा। अब इसके अंदर मैं कोई चीज डाल दूं, चली जाए, अंदर चली गई, तो अब देखो कि जो चीज अंदर गई है, अब पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर है उसके, तो एक गड़बड़ी तो ये होगी उसके लिए कि वो सांस नहीं ले पाएगा बराबर। तनफ्फुस जो है लेना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा। और आदमी को जब सांस लेना दुश्वार होता है तो फिर देखो किसी ऐसे आदमी को जिसको दमा हो, कितना तड़पता है वो। जब आदमी का निजाम तनफ्फुस डिस्टर्ब हो जाए, तो निजाम तनफ्फुस के डिस्टर्ब हो जाने के बाद
कितना मुस्तरिब, कितना बेकरार, कितना बेचैन और कितने कलक में होता है, आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। अब ये आदमी अंदर है, ऊपर से पानी है, युगत्ती साहिबा, गमरा, गमरा एक मुर्मा ने ढांप लेना, पानी उसके ऊपर है। एक तो उसका निजाम तनफ्फुस काम करना बंद कर चुका है, आदमी हॉल में है। अच्छा, पानी के अंदर जो चीज रहती है ना, वो एक जगह नहीं रहती। हाँ जी, आप अभी तालाब के अंदर डुबकी लगाओ, हम लोग तो तालाब में नहाते थे, डुबकी लगाए ऐसे, तो अगर थोड़ी देर आप नीचे हैं तो उसी जगह पर आप नहीं रह सकते, इसलिए कि मौजें आपको मुंतकिल करती हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे। जितनी मौज तेज होगी वैसे आप मुंतकिल होंगे। अल्लाह फरमा रहा है गमरा नहीं होता यहां, सिर्फ गमरात है यहां, एक शिद्दत से दूसरी शिद्दत की तरफ, दूसरी शिद्दत से तीसरी शिद्दत की तरफ, यंतकिलून मिन शिद्दतिन इला शिद्दतिन उखरा। एक, अरे अल्लाह अकबर, एक तो उसकी सांस रुकी हुई है, चौकअप है, और दूसरे वो मौजें आ रही हैं, एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल कर रही हैं। और आदमी जब एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होता है तो खौफजदा होता है, अरे अभी यहां था इधर आ गया, और डरता है पता नहीं कहां जा रहा हूं मैं। अल्लाह, तो एक तो सांस लेना दूभर हो रहा है, दूसरे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है? और उसका खौफ बढ़ता जा रहा है, और दूसरे ऊपर पानी है, फरिश्ते इसी तरह उसकी रूह निकालते हैं, यंतकिलून मिन शिद्दतिन इला शिद्दतिन। अल्लाह, हे कुरान बड़ी अजीब व गरीब किताब है। सुभान अल्लाह, फसुभान मन हाज़ा कलामुहु, फसुभान मन हाज़ा कलामुहु। अल्लाह फरमा रहा है, लोगों को ये शक है कि हम मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे, मरने के बाद लोग जिंदा कैसे होंगे। फरमाया गया क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़, हमें यह मालूम है कि जमीन कितना कम कर रही है उनसे। आदमी को आपने दफन कर दिया, धीरे धीरे मिट्टी उसको खाती रहती है जी। अल्लाह को मालूम है कि इस बदन से कितना कम हुआ है जी। अल्लाह अकबर। इसमें एक चीज ऐसी है, साइंस भी कहती है, जला दिया जाए या फिर दफन कर दिया जाए, एक चीज बची रहती है जिसको दुमची कहते हैं। दुमची, उसको अजबु जनब बोलते हैं। अजबु जनब ये जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। जहाज अगर पूरा क्रैश हो जाए तो ब्लैक बॉक्स उसका खराब नहीं होता, ऐसा बनाया जाता है। वो उसी ब्लैक बॉक्स के जरिए मालूम कर लिया जाता है कि इस क्रैश का रीजन क्या है, सबब क्या है। तो ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, मगर अजबु जन बाकी रहता है। हदीस में भी बुखारी के मौजूद है कि तमाम की तमाम चीजें सड़ जाती है, मगर अजबु जनब अल्लाह उसको बाकी रखता है, और मिनहु युरक्कब, उसी से इंसान को मुरक्कब करेगा अल्लाह तबारक तआला, वो चीज बाकी रहती है। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़, हमें मालूम है कि एक इंसान को आपने जला दिया, कि इंसान को आपने दफन कर दिया, कम कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है। अच्छा है, यहां फना का लफ्ज नहीं है, इसलिए कि साइंस ये बात कहती है कि नथिंग इज क्रिएटेड एंड नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। कोई चीज ना पैदा की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये साइंसी उसूल है। कोई चीज ना तो पैदा की जा सकती है, नथिंग इज क्रिएटेड एंड नथिंग इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। किसी चीज को पैदा भी नहीं किया जा सकता, किसी चीज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा अल्लाह ने यहां फना नहीं कहा है, क़द अलिमना मा यफ़ना जी, इसलिए कि चीज फना ही नहीं होती, यही रहती है, वो अल्लाह की निगाह में सारे जर्रात। क्या बात है। अच्छा, ज़ालिका रजुम बईद, कहते हैं मर जाएंगे तो लौटना, ये तो बहुत बईद बात है। अल्लाह फरमा रहा है कि हम देख रहे हैं कि कितना कम है, हमें इल्म है कि कितना कम हो रहा है उसके बदले। वइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास किताब हफीज है। एक किताब है जिसमें पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड है पूरा उसकी जिंदगी का जी। अल कुरान युफस्सिरु बादु बादा, फिरौन पूछ रहा है फमा बालुल कुरूनिल ऊला, पिछले लोगों का क्या हुआ। हजरत मूसा जवाब देते क़ाल इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब, उनका इल्म कहां है, कितने, सब इल्मुहा, उसका इल्म एक किताब में है जो मेरे रब के पास है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, अल्लाह तबारक तआला ना तो कोई गलती करता है और ना भूलता है, उससे गलती भी नहीं होती। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, हम ऐसे रब को मानते हैं जी, हम ऐसे रब को मानते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि पहली मर्तबा तुम्हें पैदा करके हम थक गए क्या? पहली मर्तबा नहीं थके तो मर जाओगे, दोबारा जिंदा करने में हम थक जाएंगे। कितनी बड़ी हमाकत है। अफ़अयना बिल खल्क़िल अव्वल जी, पहली बार पैदा करके हम थक गए क्या? नहीं, तो हम दोबारा जिंदा करने में थक जाएंगे। पहली मर्तबा जो बनाया जाता है वो मुश्किल होता है, वो दोबारा एक चीज को बना लिया गया दोबारा बनाना आसान होता है। पहली मर्तबा किसी चीज का क्रिएट करना, बनाना, यह मुश्किल होता है। एक दफा बनाने के बाद दोबारा उसको बनाना ये तो आसान है। तो तुम्हें ताज्जुब तो होना चाहिए कि बनाया कैसे गया तुमको, इस पर तुम्हें ताज्जुब नहीं है, मरने के बाद जिंदा होने पर ताज्जुब है। हादा अशद्दुल अजब, अजबुल अजाब, ये तो तुम्हें
क्रिएशन के ऊपर पहली मर्तबा, फर्स्ट क्रिएशन के ऊपर तुम्हें ताज्जुब नहीं है, मरने के बाद दोबारा क्रिएशन के ऊपर, सेकंड क्रिएशन के ऊपर तुम्हें जो है ताज्जुब है। हाँ, इन हादल शैउन उजाब, इसलिए कि तुम्हें ताज्जुब होना चाहिए पहले कैसे पैदा किया गया, इसलिए कि एक चीज बनाना मुश्किल होता है, फिर बाद में वो चीज बन जाए, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा उसको बनाया जा सकता है, तो इस पर तुम्हें ताज्जुब होना चाहिए ना कि पहले कैसे बनाया गया। फाइना बिल खल्क़िल अव्वल, सूर फूंक दिया गया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, चलो आ जाओ। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते, साइक और शहीद, एक हाँक कर ले जाने वाला, चलो भैया कहाँ जाना है, चलो अदालत में ले जाने में, कहाँ जाना है, किस चैम्बर में जाना है, बोले तो चलो भाई चलो, एक हाँकने वाला साइक, इस वजह से साइक कहते ड्राइवर को, कहाँ ले चलना, चले तो वहां तो गाड़ी है नहीं कि ड्राइव करके ले जाए, पकड़ करके ले जाएगा, चल कहाँ चलना, और एक गवाह भी उसके साथ रहेगा, अदालत है ना तो अलग। हाँ कहते ना जैद इब्ने अहमद हाजिर हो, ऐसे बोलता था, ये नंबर आ गया उसका, चलो हाजिर हो, तो वो जो बुलाता है ना, हाजिर करता है, वो साइक है, चल भाई चल, और उसके बाद शहीद एक गवाह होता, भाई इसने जुर्म किया, गवाही कौन दे रहा है, वही कहता। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुन व शहीद, दो फरिश्ते होंगे, एक गवाही देगा और एक हाँक कर ले जाएगा, बाज़ लोग कहते हैं यही दोनों है, ये एक हाँक कर ले जाएगा और पोथी उसके पास होगी पूरी सबूत की, ये रहा इसकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा, ये रहा, बोले यही दोनों है, एक हाँक कर ले जाएगा, दूसरा सबूत पेश कर देगा, इट इज द प्रूफ जी।